Hello viewers, I am Deepthi, your friendly neighborhood educator. Today I am going to talk about coordinate geometry for ICSE class 10 mathematics. In first part we are going to talk about section and midpoint formula. This section formula is used either to find the coordinates of this point which divides a line AB in a ratio m1 to m2, or to find the ratio in which this point divides this particular line joining by these 2 points. Suppose m1 m2 is the ratio and x1 y1 and x2 y2 are the coordinates of the endpoints of this line. Then according to section formula, if we want to find the coordinates of this point P which are x and y, then for finding the formula of x we have m1 then x2. If we are taking the ratio on left hand side, then we need to take the point value from right hand side. So m1 x2 plus m2, now on right side ratio, then point on left side, m2 then x1 divided by m1 plus m2. These are the coordinates of x point, or you can say abscissa. Now for coordinate, now m1 here y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. These are the points of this point which is dividing this line AB in the ratio m1 or m2. But if we need to find the ratio of this point, then we need not to take m1 m2 both the points, then we can just take ratio as k is to 1. So this is k and this is 1. So in this case this formula reduces only to x point, abscissa is k and then here x2. So k x2 then 1 x1. So we can simply write x1 and divided by k plus 1. And for y point, we need to calculate like k y2 plus y1 upon k plus 1. These are the points and these are the formula which are going to use as a section formula in this chapter. Our first question is, in what ratio does the point 1A divide the join of this and this? So this is the line, this is the point A, this is B point. The coordinates of A are given as -1 and 4 and B 4 and -1. And the point given is 1, A. So this is P, this is AB. Now in what ratio does the point this divide the join of this and this? So we will take here k and this side 1. So k and 1 is the ratio we are assuming. So according to section formula, p का coordinates क्या दिया गया 1 and a, यानी x coordinate हमारे को 1 दिया गया है. तो x coordinate हम यहाँ लिख सकते हैं पूरा x coordinate is equal to क्या होगा k का वैल्यू एंड उधर का पॉइंट, तो 4 into k एंड देन x का ही पॉइंट लेना है हमने 1 एंड मल्टीप्लाई बाय -1 एंड डिवाइडेड बाय जो दोनों रेशियो हमने लिया है k plus 1, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है. सिमिलरली जब हम y कोऑर्डिनेट लेंगे, इन y कोऑर्डिनेट व्हाट इज द वैल्यू, k के साथ y का पॉइंट है k एंड इधर -1, सो माइनस k, here 1 and 4, so 4 and 1 and denominator k plus 1 is equal to y point is equal to a. Now solving this, 4k minus 1 is equal to k plus 1, transposing, so 3k is equal to 1 plus 1 2, so k is equal to 2 upon 3. This is the ratio. So this is the ratio in which this p point dividing this line, so the ratio is 2:3. अगर हम m1 और m2 का फॉर्मूला लगाएंगे तब भी हमारे पास सिमिलरली यही आंसर आएगा, बट इसमें कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाती है. तो रेशियो आ गया 2:3. नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस a, so obviously we need to come to y coordinate. This value is a here. So substituting the value of k here, so -2/3 plus 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने निकालनी है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में k plus 1 है, तो 2/3 plus 1 इक्वल टू, ऊपर न्यूमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे 3 -2 plus 4 3 12, डिनोमिनेटर 2 plus 3 divided by 3 is equal to a. Simplifying, 12 minus 2 is 10 upon 3, dividing by 3 plus 2 is 5 upon 3 equal to 10 upon 3 multiply 3 upon 5, 3 cancel, answer is 2. So the value of a is 2 and the ratio is 2:3. Second question is, find the ratio. Here we need to find the ratio
in which the join of this and this 2 points are given is divided by y-axis. So 2 points are given as 4, -4 and then 7. Suppose this is A point and B is 3, 0. So we need to find the ratio is divided by y-axis. It means इस line को यहाँ पर ये y-axis cut कर रही है and we all know what is the equation of y-axis? It is x is equal to 0. So here x is equal to 0. x का point 0 रहेगा, y के point को हम कुछ भी value assume कर सकते हैं, a या b हम कुछ भी ले सकते हैं and let this point be as p. So यहाँ पर p अगर मैंने point लिया तो उसका x का point 0 है, it means उसका 0 ले लेंगे और हम b ले लेते हैं. 0 and b हम point assume कर लेते हैं कि p के coordinates हैं. Now find the ratio in which join of this and this is divided by y-axis and also find the coordinates of the point of intersection. means हमने p के coordinates भी निकालने हैं. तो simple वही रहेगा. हम यहाँ पर ratio को किस तरह से ले लेंगे? k is to 1. तो k is to 1 हम मान रहे हैं कि इसमें ये रेशियो ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन को. तो जहां हम k का पॉइंट लेंगे यहां हमने 3 का पॉइंट लेना है, 3k हो जाएगा. इस साइड है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय -4. सो -4 डिवाइडेड बाय k प्लस 1. ये हमारा x पॉइंट हो गया जो कि 0 के इक्वल है. y पॉइंट भी साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं. y के पॉइंट के लिए k को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k मल्टीप्लाई बाय 0 और 1 को किसके साथ करना है? 1 के साथ. x का पॉइंट है 7 डिवाइडेड बाय k प्लस 1. सिंपली आपने इधर का रेशियो लेना है तो उधर का पॉइंट, उधर का रेशियो लेना है तो इधर का पॉइंट. यही चीज आपको याद रखनी है. अगर हम k ले रहे हैं जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है तो पॉइंट राइट हैंड साइड का होगा पहले और फिर 1 लेंगे तो 1 के साथ लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट आएगा. अगर हम x के ले रहे हैं तो x1 आ जाएगा, इधर लेंगे तो y का आ जाएगा और y का पॉइंट हमने यहाँ पर b के इक्वल एज्यूम किया है. यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी 3k - 4. जब इधर लेके जाएंगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0. सो 3k इज इक्वल टू 4. सो द वैल्यू ऑफ k इज 4/3. सो द रेशियो इज 4:3. Now substituting this value here, this k into 0 is 0. So 7 into 1 is 7 upon k plus 1. What is k? K is 4/3 plus 1. This is equal to b. Now simplifying it, in the denominator LCM is 3, 4 plus 3, 7/7/3. So 7 multiplied by 3/7, 7 cancel. So answer is 3. So the value of B is 3. So the coordinates of P point are 0 and B is 3. So 0 and 3 are the coordinates of this point named as P by us. Now coming to the midpoint formula. Midpoint formula is like we have these two coordinates A and B and x1, y1 and x2, y2. So if P is a point which is dividing the line in two equal parts, so the ratio is 1:1. तो आपका K और 1 में दोनों ही 1:1 हो जाएगा. तो इस पॉइंट के लिए हमारे पास वैल्यू क्या बनेंगे? P के लिए हमारे पास क्या पॉइंट्स बनेगा? x वाला पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y वाला पॉइंट हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. तो दोनों तरफ के पॉइंट्स को प्लस करके सिंपली आपने डिवाइडेड बाय 2 करना है तो ये हमारे P के पॉइंट्स हो जाएंगे, यानी कि P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. मिड पॉइंट का मतलब ही क्या समझते हो? मिड का मतलब क्या है? जैसे बीच में लटक गए. कितने मार्क्स आए हैं मैथ्स में? 80 मार्क्स में से 40 आए हैं तो क्या किया? डिवाइडेड बाय 2 यानी हाफ किया. तो यहाँ पर क्योंकि दो पॉइंट्स हमारे पास दोनों साइड के हैं तो दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करने हैं. एक तरह से उनका हमने मीन निकाल लिया. तो ये मिड पॉइंट हो गया. अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि आपके पास ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं. वन पॉइंट इज -6 and 7 and another point is 3,5. So this is A, this is B. So what are the coordinates of this P point which is the midpoint? Find the coordinates of the midpoint of this line segment. तो P के coordinates कैसे हो जाएंगे? x, y कैसे निकलेगा? दोनों का प्लस करना है बस आपने. ये x1 है -6 प्लस x2 3 डिवाइडेड बाय 2, y1 7 5 y2 डिवाइडेड बाय 2 कितना? -3 डिवाइडेड बाय 2 and 7 plus 5 12 डिवाइडेड बाय 2 -3/2, 6. These are the coordinates of midpoint P here, -3/2 and 6. Similarly आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो. midpoint formula is the simplest formula in this chapter. In next question, A, B, C are the vertices of triangle ABC. If L is the midpoint of AB, here L is the midpoint of AB. It means dividing this line in two equal parts. And M is the midpoint of DC. M is the midpoint of this BC. So our question is show that LM is equal to show LM is equal to half of LM is equal to half of AC. This we need to prove. So we are joining LM.
Now we are finding the coordinates of L and M. So first coordinate of L is equal to, as we know L is a midpoint of A and B. So A का point क्या हो जाएगा 5 प्लस B का x का point क्या है -1 divided by 2 है, y point is 3 plus 1 divided by 2. Simplifying 5 minus 1 is 4 upon 2, 4 upon 2 is 2 and again 4 upon 2 is 2, 2 and 2 are the points of coordinates of L point. Now coordinates of M. M के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें बी सी का पॉइंट लेना है क्योंकि ये बी सी का मिड पॉइंट है, तो बी और सी का इधर से -1 इस तरफ से 7 डिवाइडेड बाय 2, हेयर 1 एंड हेयर -3 डिवाइडेड बाय 2. 7 minus 1 is 6 upon 2, it means 3. 1 minus 3 is -2 upon 2 -1. So these are the coordinates of M. अब हमारे पास L के पॉइंट्स भी हैं, M के पॉइंट्स भी हैं. हमने नेक्स्ट इसके डिस्टेंस को इसके हाफ के इक्वल प्रूफ करना है, तो इट मीन्स हमें यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है. तो पहले हम LM का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम AC का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और फिर देख लेंगे कितना आ रहा है. तो डिस्टेंस ऑफ LM हमारे पास कितना हो जाएगा अंडर द रूट. डिस्टेंस फॉर्मूला आई होप आप सबको आता होगा, x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square under the root. दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला. तो यहाँ पर L और M के लिए L के पॉइंट्स L के पॉइंट्स को हम x1 y1 ले लेंगे और M के पॉइंट्स को हम x2 y2 ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे. तो यहाँ पर x2 माइनस x1 मीन्स मुझे M का पॉइंट किसी भी एक का आप ले सकते हो. स्क्वायर फॉर्मूला में होने से यही फायदा होता है कि किसी भी एक को आप पहले ले लोगे तो जब का स्क्वायर हो जाएगा तो अपने आप प्लस में ही आ जाएगा, अगर माइनस का भी होगा तो भी प्लस का ही बन जाएगा. तो L और M के कोऑर्डिनेट्स हमने ये दोनों लेने हैं. किसी भी एक को आप x2 या x1 मान सकते हो. हमने L वाले को x1 मान लिया, तो ये मेरा x1 है, ये x2 यानी कि 3 - 2. तो पहले में 3 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा और नेक्स्ट में -1 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा. इट मीन 3 - 2 इज 1 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 कितना -3 का स्क्वायर, इट मीन्स 3 का ही स्क्वायर हो जाएगा. तो 1 + 9 मीन्स √10. ये मेरे पास LM का डिस्टेंस आ रहा है. अब LM का इतना डिस्टेंस आ रहा है, हमें दूसरा AC का कैलकुलेट करना है. तो AC का डिस्टेंस के लिए हमें A और C के पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, यानी ये x1 ले लिया, ये x2 ले लिया, इस तरह से y1 y2 इन दोनों का लेना है हमने. तो 7 - 5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, कितना आंसर आ जाएगा. 7 - 3 इज 7 - 5, 7 and -5 -3 and -3. So 7 - 5 is 2. So 2 square और यहाँ पर -3 मीन्स -6 स्क्वायर. तो इट मीन्स 6 स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस वैसे भी कैंसिल हो जाएगा. तो 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 6 स्क्वायर इज 36. इट मीन्स √40. √40 का मतलब क्या हो गया कि 2 हम कॉमन ले लेंगे और √10 रह जाएगा, क्योंकि 40 का मीन्स हो गया कि हमने 2 × 2 और √10 लिया है, तो 2 √10 आ जाएगा. तो अब यहाँ पर हम LM की वैल्यू भर रहे हैं. LM का डिस्टेंस हमने कितना निकाला, वैल्यू ऑफ LM इज √10 और वैल्यू ऑफ AC हमारे पास कितनी आ रही है 2 √10 आ रही है. तो अब आपका ये आंसर हो गया कि हाफ इंटू मैं उसको 2 √10 करूंगी तो दोनों तरफ LHS RHS इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये चीज प्रूव हो जाएगी. आप चाहो तो एक की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो और दूसरे के इक्वल उसको ले आओ. आपके पास यहाँ √10 है और यहाँ 2 √10 है. और वैसे भी आपको ये फॉर्मूला याद ही है कि अगर कोई लाइन पैरेलल होती है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, तो ये इसका डिस्टेंस इसके हाफ होता है. तो LM इज हाफ ऑफ AC. तो ये हमने इस फॉर्मूला से प्रूव भी कर लिया. मिड पॉइंट फॉर्मूला क्योंकि बहुत सिंपल होता है तो वो पेपर में एज इट इज नहीं आता, उसके साथ कोई क्वेश्चन मिक्स होकर आएगा, उसमें आपने यूज किया है. डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज किया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन में आपने यूज किया है प्रूव करने के लिए. नाउ कमिंग टू पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन. ट्राइसेक्शन मीन्स वो दो पॉइंट्स जो लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सपोज दीज आर द पॉइंट्स A and B हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1 and x2 y2. And P and Q are the point which are dividing this line in 3 equal parts. First part is AP, then PQ and then QB. These 3 are equal parts. तो point of trisection का मतलब होता है if we need to find the coordinates of this P point, तो हम रेशियो क्या लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये 1:1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. बट जब हम P लेंगे तो P के केस में हमारे पास रेशियो आ जाएगा 1:, इधर का पूरा हम लेंगे 2. और जब हम कोऑर्डिनेट्स Q के निकालेंगे तो Q के केस में ये पूरा 1 और 1 होगा, यानी कि ये 2 होगा, तो 2:1. इतना ही डिफरेंस आएगा, लगेगा वही सेक्शन फॉर्मूला, बट जब हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं तो हमने रेशियो लेना है 1:2 और जब हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हमने रेशियो लेना है
2:1, इतना ही है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन में, बाकी लगेगा इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं ताकि आप इसको सिंप्लीफाई करके समझ पाए। अब हमारे पास फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। यहाँ पर गिवन पॉइंट्स आर -3 and 0 एंड देन 6 and 6। तो हमने पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन निकालने हैं। अब ए और बी हमने इसके पॉइंट्स मान लिए और हमने इनको एज्यूम कर लिया कि कोई भी ले लीजिए, आप एल और एम ले लेते हैं कि एल और एम इनके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आ गए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, जब हम एल के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हमारे पास रेशियो क्या आएगा, फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल रेशियो क्या आया, रेशियो इज, एल के लिए क्या रेशियो है 1 एंड दिस 2 पार्ट्स, सो रेशियो इज 1:2। तो 1:2 का रेशियो है, यहां तक हमारा 1 है और यहां तक हमारा पूरा 2 आएगा, तो यहां तक का रेशियो हमारे पास 1 पार्ट है, तो 1:2 है। अब जब हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स एल के कैसे निकलते हैं, वही सेक्शन फॉर्मूला रहेगा कि इधर का रेशियो है तो पॉइंट हमने इधर का लेना है। इट मींस ये मेरे पास m1 है या और ये m2 है, या फिर आप इसको m और n, किसी बुक में m1 m2 होता है, किसी में mn होता है, आपको उसको याद ही नहीं करना। याद किसको करना है कि इधर का रेशियो है तो उधर का पॉइंट पहले लेना है। तो m1 के साथ हम x2 लेंगे, यानी कि m1 कौन है मेरा 1:2 है, तो 1 के साथ 6 लूंगी, तो 1 × 6 मेरा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इस तरफ जब मैं 2 लूंगी तो 2 के साथ मेरे पास पॉइंट आएगा -3 और डिवाइडेड बाय रेशियो कितना है 1 + 2, ये x का पॉइंट निकल जाएगा। सिमिलरली फॉर y पॉइंट, रेशियो 1 ले रहे हैं तो पॉइंट y का लेंगे, तो 1 के साथ 6 आ जाएगा। फिर जब रेशियो 2 लेंगे इधर का, तो इधर का y का पॉइंट 0 आएगा और नीचे 1 + 2 आएगा, तो इट मीन 6 - 6 डिवाइडेड बाय 3, हेयर 6 + 0 डिवाइडेड बाय 3, इट मीन 6 - 6 is 0 और 6/3 is 2, तो 0 and 2 आर द पॉइंट्स ऑफ L, तो L के पॉइंट 0 और 2 निकल जाएंगे। अब इसके बाद हम M पॉइंट निकालेंगे, तो M पॉइंट के लिए हमारे पास क्वेश्चन तो सेम ही रहना है, सिर्फ M के लिए हमारा रेशियो यहां से यहां तक का पूरा 2 हो जाएगा और इस तरह वाला रेशियो हमारे पास 1 रह जाएगा। तो फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ, हम M का पॉइंट निकाल रहे हैं, तो रेशियो हमारे पास यहाँ पर चेंज होके 2:1 आ जाएगा। तो अब इधर रेशियो 2 है और पॉइंट इधर का 1 है, तो 2 के साथ जब हम पॉइंट लेंगे तो x का पॉइंट आएगा 2 6 और इधर क्या लेना है हमने 1 के साथ -3 और डिवाइडेड बाय 1 + 2 या 2 + 1 जैसे मर्जी लिख सकते हैं। सिमिलरली विद y पॉइंट 2 and 6 and 1 and 0 डिवाइडेड बाय 1 + 2। Calculation 6 × 2 12 -3 divided by 3, 6 × 2 12 + 0 divided by 3. It means 12 - 3 is 9 divided by 3 means 3, 4. So 3 and 4 are the points of M point. So 3 and 4. So 2 points of trisection, L is 0, 2 and M is 3, 4. This is the final answer of this question of trisection. In next question, A, B, C are the vertices of this triangle ABC. Find the length of the line segment AP. P क्या है? Where P lies on BC. P lies on BC. Here P lies and such that BP ratio PC is 2:3. So BP, it means this is 2 and this is 3 because it is given that BP ratio PC is equal to 2:3. If this part BP is equal to 2, then PC is equal to 3 parts of this line. So we need to find the length of this segment AP. So AP के लिए first we require the coordinates of this point P. So here again we need to apply section formula to find the coordinates of P. So first coordinates ratio we have given, coordinates of P, x and y. Suppose they are x and y. So हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो x पॉइंट के लिए हमने क्या करना है, इस रेशियो के साथ हमने इधर का पॉइंट लेना है, 2:3 है, तो 2 के साथ क्या आ जाएगा, 2 - 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड देन 3 किसके साथ हो जाएगा, +3 and 3 and here x पॉइंट इज 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3 जो रेशियो दिया गया है 2 + 3 एंड फॉर y पॉइंट 2 के साथ हम y का पॉइंट लेंगे, 2 × 4, 3 के साथ हमारे पास आएगा -1 और डिवाइडेड हमारे पास 2 + 3 ही रहेगा। सिंप्लीफाई करेंगे, -4 3 3 9/5 here 4 2 8 -3 डिवाइडेड बाय 5
9 minus 4 is 5. 5 divided by 5 is 1. 8 minus 3 is 5. 5 divided by 5 is 1. So 1, 1 is the coordinates of this P point. So हमारे पास P point के coordinates निकले हैं 1, 1. अब हमने क्या करना है, length of line segment AP निकालनी है. Here again we need to apply distance formula. Length of AP is equal to under the root. A का पॉइंट -3 4 है और P का पॉइंट अभी हमने 1 और 1 कैलकुलेट किया, तो x2 माइनस x1, 1 माइनस -3 इसका स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इज 4 का स्क्वायर. ना जाएगा 1 प्लस 4 सॉरी 1 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 और फिर उसके बाद 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 स्क्वायर and then here 1 minus 4 again minus 3 square. So 3 plus 1 is 4 square plus 3 square under the root. It means 16 plus 9. ये तो आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट याद ही होगा, 25. So answer is 5. So the distance of AP is 5 units. क्योंकि डिस्टेंस कभी भी हमने देना है तो हमें यूनिट्स आगे लिखते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मीटर या सेंटीमीटर तो दिया नहीं है, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे और रेशियो दिया गया था, तो लेंथ को हम यूनिट्स आगे लिख देंगे क्योंकि मीटर या सेंटीमीटर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. तो आपका एपी का आंसर आ गया 5 यूनिट्स. फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, and then using A and P point using distance formula we can calculate the length of this segment AP. One more formula from this unit is centroid of the triangle. So what is centroid? It is the point where all the medians meet. And what is the median? Median is a line segment which starting from the vertex divide the line opposite to it in equal parts. So ये हमारी median है, AP मान लेते हैं, AP median है. तो यहाँ से हमारे पास B से कोई भी पॉइंट ले लीजिए, L ले लीजिए और C से यहाँ पर M ले लीजिए. तो जहां पर ये तीनों पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, दिस इज सेंट्रॉइड. So centroid is the point where all the medians meet and it divides these lines. It means all the medians in the ratio 2:1. ये आपको याद रखना है, centroid always divide the medians in the ratio 2:1. क्योंकि हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि centroid किस रेशियो में मीडियन को डिवाइड कर रहे हैं. और मीडियन क्या होती है? मीडियन जैसे ये BL मीडियन है तो ये AC साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. CM मीडियन है तो ये AB साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. तो यहां से मीडियन और मीडियन से सेंट्रॉइड और सेंट्रॉइड से रेशियो और उसके बाद फिर सेक्शन फॉर्मूला. चलिए इसका क्वेश्चन इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं. सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स है ट्रायंगल के तो 3 वर्टिसेस होंगी. 3 वर्टिसेस से हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? सपोज द वर्टिसेस ऑफ A आर x1 y1, B आर x2 y2 एंड C आर x3 y3. तो इट मींस हमारे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला कैलकुलेट करने का क्या होता है, x1 यानी कि A का पॉइंट, सारे x के पॉइंट, तीनों x के पॉइंट डिवाइडेड बाय 3 और फिर y का पॉइंट ले लेंगे y1 plus y2 plus y3 and divided by 3. This is the direct formula for the calculation of centroid. Otherwise आप दूसरा इसको रेशियो वाला फॉर्मूला से भी कर सकते हो कि आपने BC का मिड पॉइंट निकाल लिया P और फिर आपने AP को 2:1 के रेशियो में कैलकुलेट कर लिया, तब भी आपके पास ये G पॉइंट कैलकुलेट, सेंट्रोइड पॉइंट को हम G से दिखाते हैं, तब भी आप G को कैलकुलेट कर सकते हो. अगर आपने P मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया और AP को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये G पॉइंट, तो आप G के पॉइंट्स ऐसे भी निकाल सकते हैं. बट दिस इज द मोर सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. तीनों पॉइंट्स का XX वाला पॉइंट ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 और फिर सिमिलरली Y का ऐड करके डिवाइड बाय 3 हम सेंट्रोइड में डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. Simple question. Based on this formula, we need to find the centroid of this triangle. So given vertices of ABC are here. So इनको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? The coordinates of, हम G पॉइंट को सेंट्रोइड लेते हैं, तो coordinates of G equal to X पॉइंट के लिए हमने क्या लेना है, तीनों के X पॉइंट लेने हैं, किसी को भी पहले लिख सकते हैं आप. 7 है X पॉइंट, X1 हो गया, B का 0 आ गया, C का -1 आ गया, डिवाइडेड बाय 3. सिमिलरली विद y का -2 प्लस इधर से B से 1 आ जाएगा, C से 4 डिवाइडेड बाय 3. सिंप्लीफाई करिए, सो 7 - 1 इज 6/3, here -2 plus 5 divided by 3. So here 2, 5 - 2 is 3/3, it means 1. So 2 and 1 are the points of
सेंट्रॉइड। आप दूसरे फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप किसी भी एक पॉइंट का साइड का मिड पॉइंट निकाल लीजिए, जैसे बीसी का मिड पॉइंट निकाल लिया हमने, मान लेते हैं ये पी पॉइंट है, मिड पॉइंट आ जाएगा, और फिर हम ए जी पी को ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से जी निकल जाएगा, क्योंकि इसका रेशियो 2:1 है। अभी हमने पढ़ा कि 2:1 में डिवाइड करता है। तो वैसे करके भी आप जी के पॉइंट्स निकाल सकते हैं, बट दिस इज द मोर सिंपलेस्ट मेथड। In next question, the coordinates of the centroid of triangle PQR. PQR triangle दिया गया है PQR and coordinates of G point are given. The coordinates of centroid of triangle PQR are 2 and -5. If Q and R दोनों के पॉइंट्स दिए गए हैं, Q की वैल्यू है -6,5 and R is 11,8. कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स P। इसका नहीं दिया गया तो P का हमने निकालना है, तो लेट इट बी x एंड y। तो x और y को ले लेंगे ताकि हमें सेंट्रोइड फॉर्मूला लगाने में इजी हो जाएगा। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ G क्या है? G के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2 और -5 है। तो जब हम x पॉइंट लेंगे तो उसको 2 के इक्वल करना है हमने। तो x पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट क्या है? x है, प्लस सेकेंड पॉइंट क्या है? -6 है, और थर्ड पॉइंट क्या है? 11 है, डिवाइडेड बाय 3। ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसका सेंट्रोइड का x पॉइंट, यानी कि 2 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली हम y पॉइंट्स लेंगे तो y इधर से क्या आ जाएगा? 5 एंड देन हेयर 8 डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इज इक्वल टू -5। तो यहां से x का पॉइंट निकल जाएगा। x 11 - 6 is 5 plus 5, 3 into 2 is 6, so x is equal to 6 - 5 it means 1। तो x का पॉइंट 1 आ जाएगा। y के लिए कैलकुलेट करें, 8 + 5 is 13, 5 into 3 is -15, y is equal to -15 - 13 it means -28। सो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? p के कोऑर्डिनेट्स हमने ऐसे लिखना है, x का पॉइंट हमारा 1 आया है और ये -28। So 1 and -28 are the coordinates of vertex P. This is a simple question. In this last question of today's video, the given statement is the line joining the point 2, 1 and 5 -8. So 2 points are 2, 1 and then 5, -8. These are the two given points. Line joining the point, this is trisected at the points P and Q. दो पॉइंट्स हैं जो इनको ट्राइसेक्टेड कर रहे हैं। इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट P है और दूसरा हमने ले लिया Q है। तो P एंड Q, इफ द पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन, P पॉइंट जो है उस पर से एक लाइन जा रही है और लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। ऑन द लाइन 2x - y प्लस k इक्वल टू 0। इस लाइन पे P पॉइंट लाई कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर क्योंकि k में दिया गया है तो k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एंड लास्ट में ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। तो हम इसको ए बी एज्यूम कर लेते हैं कि जो गिवन पॉइंट्स दिए गए हमें ए बी है, लाइन सेगमेंट का नाम हमने ए बी एज्यूम कर लिया। तो अब हमने P के पॉइंट्स निकालने हैं। हमें पता है कि ट्राइसेक्शन कर रहा है, इट मीन्स ये रेशियो इस तरफ वाला हमारे पास 1 आ जाएगा और उस तरफ पूरा रेशियो हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी कि P का पॉइंट हमारे को 1:2 के रेशियो में इसको डिवाइड करके दे रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट हम किस तरह से निकालेंगे? 1 और 2 का रेशियो। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। इस तरफ 1 है तो हमने B का पॉइंट लेना है। तो 1 आ गया, 1 के साथ 5 आ गया, इस तरफ से प्लस 2 आ गया, इधर x का पॉइंट 2 ही आ गया, नीचे डिवाइडेड में 1 + 2 आ जाएगा, ये x का पॉइंट निकल गया। और y के पॉइंट के लिए सिमिलरली हमने 1 का लेना है, साथ में y का पॉइंट क्या आ जाएगा? -8। सिमिलरली 2 का पॉइंट जब हम लेंगे तो 2 के साथ इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 और डिवाइडेड बाय 1 + 2 आ जाएगा। तो नाउ 5 + 4 डिवाइडेड बाय 3 -8 + 2 डिवाइडेड बाय 3, 4 + 9, 9 डिवाइडेड बाय 3, इधर क्या आ जाएगा? -6 डिवाइडेड बाय 3। सो 3 and -2, 3 and -2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P। अब हमें ये पता है कि कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन पे लाई करता है तो इट मीन्स उसके x और y पॉइंट जो दिए होते हैं वो उसके x और y पे सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को। तो हमें P की इक्वेशन क्या दी गई है? 2x - y + k = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ऑन विच दिस P पॉइंट लाई। तो P पॉइंट क्या है? 3 and -2। तो हम x की जगह पे x का पॉइंट यानी 3 डाल देंगे और y की जगह पे y का पॉइंट यानी कि -2 डाल देंगे। तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। कितना है? 6 + 2 + k = 0। सो 6 + 2 is 8, उस तरफ जाएगा तो k का आंसर -8। तो k की वैल्यू हमारे पास -8 आ जाएगी, क्योंकि उसने पहला पॉइंट हमारे को ये बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ
k। अब दूसरा हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ q निकालना है, तो उसके लिए तो सिमिलर मेथड ही रहेगा हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। और हमें पता है कि q इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, q के लिए इधर का रेशियो 2 है और उधर का रेशियो 1 है, तो हमने 2 और 1 का रेशियो लेना है। तो अब 2 के साथ हम ये वाला पॉइंट लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 5, 2 के साथ 5 और इधर 1 के साथ 2 और डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली 2 के साथ हम इस तरफ लेंगे तो 2 के साथ -8 और 1 के साथ जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय 3। कितना आ जाएंगे पॉइंट्स, 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 -16 प्लस 1 divided by 3. So 10 plus 2 is 12 divided by 3 means 4, and here -15. -15 means -5. So 4 and -5 are the coordinates of Q. तो Q के पॉइंट्स निकल जाएंगे हमारे पास 4, -5 और K का आंसर हमने ऑलरेडी -8 कैलकुलेट कर लिया है। वही सिंपल फॉर्मूलाज हैं जो हमने चैप्टर में यूज किए हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने सेक्शन फॉर्मूला देखा है, मिड फॉर्मूला देखा है, ट्राइसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं वो हमने कैलकुलेट किया कि P और Q दोनों पॉइंट्स इक्वल रेशियो में लाइन को डिवाइड कर रहे हैं, तो हाउ वी कैलकुलेट दिस। उसके बाद हमने सेंट्रॉइड के पॉइंट्स को कैलकुलेट किया है। हर फॉर्मूला पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं सो दैट आपको ये फॉर्मूला इजीली क्वेश्चन में अप्लाई करना आ जाए, जो कि मेन है। सिर्फ फॉर्मूला आने से कुछ नहीं होगा, पेपर में भी आपको पहला मार्क तभी मिलता है जब आप फॉर्मूला सही लिखते हैं और उसके अंदर सही वैल्यूज को इंप्लीमेंट कर देते हैं, पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आई होप आई वाज एबल टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर रिगार्डिंग दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तभी इसका सेकेंड पार्ट यानी इक्वेशन ऑफ ए लाइन बनाई जाएगी। थैंक यू।